بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کی جانب سے آپ کے پاس آج میں حاضر ہوں۔ صفا آن لائن کے ذریعے مدارس پر ایک گفتگو آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ مدارس آج کا ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے اور تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ مدارس کا مطلب جہاں پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا ہے۔ پڑھنے پڑھانے کا مطلب جہاں انسانوں کی نئی نسلیں، ہمارے بچے اور بچیاں، وہ بہت کچھ سیکھتی ہیں، جانتی ہیں، انہیں علم دیا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ مدارس کا نظام ہے کیا؟ اور مدارس کے افادیت کیا ہے؟ اب مدارس کے پس منظر میں کیا حقائق ہیں جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور اہل مدارس کو بھی ان حقائق کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہت سارے علم کے مفکرین، تعلیمی میدان کے ماہرین، ہمارے علماء، رہنما، دانشوران، انہوں نے تعلیم پر بہت کچھ لکھا ہے، مدارس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، مدارس کے رول پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ آئیے آج ہم سادہ انداز میں جانیں کہ مدارس کا کام کیا ہے۔ مدارس کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ پہلا ہے ان کا تعلیمی ڈھانچہ، وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرا ہے ان کا تربیتی اور انتظامی ڈھانچہ۔ تعلیمی نظام مدارس میں اگر دیکھا جائے تو تین طرح کے مدارس آج موجود ہیں۔ پہلے وہ بڑے پیمانے پر رائج مکاتب ہیں جو مدارس کے لیے ایک اہمیت رکھتے ہیں، جہاں چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، انہیں خاص طور پر قرآن مجید، اردو زبان، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندی زبان، میتھ، تھوڑی بہت معلومات، جغرافیہ، دعائیں، کلمہ، یہ سب سکھایا جاتا ہے۔ یہ نظام ایسا ہوتا ہے جو بچوں کی صورتحال پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کا خاکہ یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 4 گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں۔ انہیں باقاعدہ ایک مستقل عمارت میں بھی قائم کیا جاتا ہے، اور مدارس کے گوشے میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ مساجد کی شکل میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ مسجدوں میں بڑے پیمانے پر مکاتب کا نظام چلتا ہے۔ اس میں بہت سارے بڑے منظم ہیں اور بہت سارے غیر منظم ہیں، لیکن اپنی افادیت کے لحاظ سے کمتر نہیں ہیں۔ بہت سارے مکاتب ایسے ہیں جس میں باقاعدہ کورس ہے، نظام ہے، امتحان ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور وہ بچے وہاں کے پڑھ کر دوسرے اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ثانویہ میں یا متوسطہ میں، جس کو ہم ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری کہتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جہاں امتحان کا نظام نہیں ہے، بلکہ تعلیم کو مکمل کرنے کا نظام ہے۔ یہ کتاب آپ نے شروع کی، مکمل کر لیا، ہو گیا آپ کا امتحان۔ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، آپ کا مکمل ہو گیا آپ کا کام۔ آپ نے دعائیں یاد کرنا شروع کی، دعائیں یاد ہو گئیں، آپ کا کام ہو گیا۔ یہ اس طرح کے مکاتب بڑے پیمانے پر رائج۔ دوسرے مدارس عموماً انہی کو کہتے ہیں جن کا مستقل نظام ہے، عموماً ان کی مستقل عمارتیں ہیں، ان میں ہاسٹل بھی ہے، نہیں بھی ہے، لیکن عام طور پر وہ مکاتب کے ساتھ ساتھ عربی درجات بھی ان کے یہاں پائے جاتے ہیں، فارسی کے درجات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ عربی اور فارسی کے درجات کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر پرائمری تعلیم کے بعد، مکاتب کے بعد، بچے کو اگر عالم بننا ہے، بچے کو اگر اردو زبان کا جانکار بننا ہے، بچے کو اگر فارسی اور عربی پڑھنی ہے، فقہ اور افتاء کرنا ہے، علوم شریعہ میں اسے مہارت حاصل کرنی ہے، اسے مفتی اور قاضی بننا ہے، اسے تفسیر اور حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے اس کے 2 روٹ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ فارسی، دراصل فارسی ایک زبان ہے جو نہایت ہی مشہور اور میٹھی زبان ہے۔ ہندوستان کا ایک زمانہ ہے جس میں فارسی یہاں پر بہت رائج تھی، اور بے شمار کتابیں فارسی میں لکھی گئی، اس لیے انہیں فارسی کے درجات کہلاتے ہیں۔
लेकिन असल वहां पर भी अरबी पढ़ाई जाती थी। फारसी को जरिया बनाया जाता था अरबी जुबान को समझने का, अरबी ग्रामर को समझने का, कुरान और हदीस को समझने का, फिक्र और इफ्ता को समझने का। बाद में अरबी जुबान बराह रास्त पढ़ाई जाने लगी। फारसी का धीरे धीरे रिवाज कम हुआ। फारसी बहैसियत एक जुबान के रह गई। फारसी दूसरे उलूम को हासिल करने का जरिया और वसीला नहीं रह गई। तो अब उन्हीं को अरबी क्लासेस कहते हैं, अरबी दर्जात कहते हैं। ये आमतौर पर जिसे मशहूर जुबान में मुंशी, मौलवी, आलिम, ये दरअसल ये ग्रेड है जिसे आलमियत का कोर्स कहते हैं। ये मदारिस की शक्ल में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इनका जो निज़ाम है ये गोया कि एक दायरे में ये शरिया के, कुरान के, हदीस के, तफसीर के, फ़िक़्ह के, उलूम फ़िक़्ह इस्लामिया के, और इसी तरह ज़ुबान में उर्दू ज़ुबान के, फ़ारसी ज़ुबान के, अरबी ज़ुबान के ख़ास तौर पर ये इदारे होते हैं। यहाँ पर हिंदी उतनी पढ़ाई जाती है जितनी आम ज़ुबान में ज़रूरत हो। बहुत सारी जगहों पे अंग्रेज़ी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। रियाजियात यानी मैथ उतना पढ़ाया जाता है जितनी आम इंसान की ज़रूरत होती है। ये सब उलूम जिन्हें हम उलूम असरिया कहते हैं, मॉडर्न सब्जेक्ट कहते हैं। साइंस है, साइंस की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन साइंस के नाम पर नहीं पढ़ाई जाती है, एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती है। इन्हीं के अपने सब्जेक्ट इतने होते हैं कि ये दीगर सब्जेक्ट्स के लिए अपने पास गुंजाइश नहीं समझते हैं। ये है हमारे मदारिस। इन्हीं में फिर दारुल उलूम है जहां पर उलूम शरिया की आखिरी मंजिल मौजूद है, यानी इफ्ता, क़ज़ा, तखस्सुस फिल अदब, तखस्सुस फिल शरिया, तखस्सुस के मुख्तलिफ मराहिल यानी स्पेशलाइजेशन अरबी ज़ुबान में, उलूम इस्लामिया में, अरबी अदब में, अरबी सकाफ़त में, तफसीर में, हदीस में, मुख्तलिफ इस तरह के उलूम में, तारीख़ इस्लामी में, ये सारी चीज़ें जहाँ मुकम्मल तौर पर पढ़ाई जाती हैं उन्हें हम दारुल उलूम कहते हैं। वो चंद हैं और हिंदुस्तान में बड़े मशहूर हैं। इनका जो निज़ाम है ये बहुत ही मुनज़्ज़म है इस एतबार से कि इनका एक इम्तिहान होता है, साल होते हैं, कोर्स होता है, डिग्रियां दी जाती हैं। इनकी डिग्रियां बहुत सारी जगहों पर मुतारफ है, हत्ता कि यूनिवर्सिटीज़ भी आर्ट फैकल्टीज़ में अपने यहाँ जिन जुबानों से ये पढ़कर आते हैं उसमें पढ़ने की गुंजाइश देती हैं। तो ये जो हमारे मदारिस इस्लामिया है, निस्वा यानी लड़कियों के लिए इदारे, लड़कियों के लिए जामियात, वो भी इसी अंदाज के हैं। निस्वा प्राइमरी में तो एक जैसे होते हैं, साथ में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, लेकिन बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उनके लिए एक मुस्तकिल निज़ाम होता है। एक गर्ल्स इस्लामिक स्कूल्स होते हैं, गर्ल्स इस्लामिक कॉलेजेस होते हैं। गोया कि लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर इलाहिदा और सेपरेट उनके लिए तालीम का वही निज़ाम होता है जो लड़कों के लिए आलिम और फाजिल बनने का होता है। ये मदारिस का जो निज़ाम है और इसमें जो कोर्स है और किताबें हैं, इनके सामने जो मकासिद हैं, ये उलूम शरिया और ख़ास तौर पर अरबी ज़ुबान और उससे अटैच उर्दू ज़ुबान, चूँकि वो मीडियम होती है तालीम की, और कुछ फ़ारसी चूँकि उर्दू को और अरबी को नहीं, उर्दू को ख़ास तौर पर अदायगी के लिए, उसमें लताफत के लिए, शीरीनी के लिए फ़ारसी ज़ुबान की ज़रूरत है। और वैसे भी फ़ारसी एक नहायत ही ताकतवर और ख़ूबसूरत ज़ुबान है, इसलिए उन्हें पढ़ाया जाता है। ये मदारिस इस बुनियाद पर कायम हुए और ये जज्बा लेकर कायम हुए कि एक ऐसी कम्युनिटी जो बहैसियत मुसलमान हिंदुस्तान में अपना किरदार अदा करना चाहती है, इस मुल्क को बनाने और संवारने में वो अपना हिस्सा बटाना चाहती है, और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए उसके पास उलमा और फजला ज़रूरी है, उसके लिए दाई ज़रूरी है, उसके लिए मुबल्लिग ज़रूरी है, उसके लिए रहबर और रहनुमा ज़रूरी है, उसके लिए ऐसे नासिह और ऐसे मुरब्बी ज़रूरी है जो उलूम इस्लामिया को जानते हों। इसकी तकमील के लिए और आम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए और मुल्क में एक पढ़ा लिखा तबका जो इस्लाम से वाकिफ हो, इस्लाम की बुनियादों से वाकिफ हो, इस्लाम की तालीमात से वाकिफ हो, उन्हें पैदा करने के लिए ये दरअसल हमारे मदारिस, हमारे इस्लामी जामियात, हमारे दारुल उलूम, हमारे मकातिब कायम हुए। इनका जो इंतज़ामी पहलू है
वो दो तरह का है। मैंने बताया कि हॉस्टल होते हैं और हॉस्टल के बगैर भी होते हैं, बच्चों के भी हॉस्टल होते हैं, बच्चियों के भी हॉस्टल होते हैं। उमूमी तौर पर इनके हॉस्टल साफ सुथरे होते हैं, अच्छे होते हैं, कमरों में उसी तरह की रिहाइश होती है, और यही नहीं बल्कि हॉस्टल में खाने पीने का भी निजाम होता है। आपको जितने भी मदारिस मिलेंगे उनमें उनका अपना मतबख होता है, उसमें वो बच्चों को तालीम के साथ साथ खाना भी देते हैं, उनके 2 वक्त के खाने का भी नज़म करते हैं, उनके लिए रिहाइश का इंतजाम करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि ये सारा निजाम उमूमी तौर पर या बहुत ही कम पैसों में होता है या बिल्कुल ही फ्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की गरीब आबादी को पढ़ने और पढ़ाने का एक बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका ये मदारिस फराहम करते हैं। अलबत्ता इन मदारिस का जो निज़ाम होता है वो बाज़ पहलुओं से नामुकम्मल होता है। क्यों? इसलिए कि ये अवामी ताउन पर मुनहसिर होते हैं। इनका बजट कभी कभी कम होता है और बजट की कमी का असर उनके तमाम नज़्म व ज़ब्त पर पड़ता है और उसके असरात पड़ते हैं। ये मैंने इसलिए बतलाया है कि उमूमी तौर पर मदारिस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उमूमी तौर पर मदारिस में अगर आप जाएंगे तो यही कुछ मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वहां मखलूत तालीम नहीं है, लड़के लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ते। हमारे जैसे लड़कों के कॉलेजेस होते हैं, लड़कियों के कॉलेजेस होते हैं, लड़कों के हॉस्टल होते हैं, लड़कियों के हॉस्टल होते हैं। इसी तरह मदारिस भी उन्होंने अपना निज़ाम बनाया है कि लड़कियों का निज़ाम तालीम का अलग होगा, लड़कों का निज़ाम अलग होगा, लड़कियों के हॉस्टल उनके तालीम के निज़ाम अलग होंगे और लड़कों के तालीम के निज़ाम उनके अलग होंगे। उनके सब्जेक्ट के लिहाज से मैंने आपके सामने वजाहत की कि उलूम इस्लामिया और लैंग्वेजेस में 3 जुबानें, खास तौर पर अरबी, उर्दू और फारसी, ये दरअसल उनका असल सरमाया है। लेकिन अंग्रेजी बहुत सारे मदारिस ने अपने यहां दाखिल कर रखी है और इसी तरह हिंदी, मैथ के जरूरी अज्जा बेशुमार मदारिस ने दाखिल कर रखे। कुछ ऐसे भी मदारिस हैं जिन्होंने उलूम असरिया और उलूम शरिया को एक साथ पढ़ाने का भी बेड़ा उठा रखा है। बहुत सारे मदारिस ऐसे मिल जाएंगे, खास तौर पर जिन मदारिस का क़याम पिछले 30 सालों में हुआ, 40 सालों में हुआ, 20 सालों में हुआ, जो अभी जल्दी के हैं, उन मदारिस में दोनों निज़ाम पाए जाते हैं। ये मदारिस अपने मकसद के लिहाज से 4 चीजें अपने अंदर सुनोए हुए हैं और जो बड़ी अहमियत के हामिल है। पहली चीज कि ये मदारिस तालीम याफ्ता बनाते हैं। तालीम याफ्ता का मतलब मुहज्जब बनाते हैं, इंसान तहजीब याफ्ता बन जाता है। ये 4 चीजों के लिए अपनी अहमियत रखते हैं, उसे हमें सामने रखना चाहिए। पहली चीज कि ये इंसान को तालीम याफ्ता बनाते हैं। तालीम याफ्ता का मतलब हुआ कि उसे मुहज्जब बनाते हैं। तालीम याफ्ता इंसान का मतलब कि उसे उसकी जिंदगी में कामयाब बनाते हैं, उसको वो हुनर देते हैं, वो सलीका देते हैं, वो तहजीब देते हैं, वो इल्म देते हैं जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। और आप जरा तसव्वुर करें, अगर हिंदुस्तान के वसी तूल अर्ज में, इस वसी मुल्क में अगर ये मदारिस ना होते तो कितने हजारों और लाखों लोग हैं जिन्होंने इसी मदारिस से पढ़ा है, इन्हीं मदारिस में उन्होंने तालीम हासिल की है, वो गैर तालीम याफ्ता रह जाते तो इस हिंदुस्तान का, इस मुल्क का, हमारे इस आबादी का क्या होता। तो पहली चीज कि ये इंसान को तालीम याफ्ता बनाते हैं और उसे मुहज्जब बनाते हैं। दूसरी चीज, ये इंसान को सिर्फ इल्म नहीं देते बल्कि उसकी तरबियत करते हैं, उसे अच्छी बातें सिखाते हैं, उसे सच बोलना, उसे दूसरों के काम आना, वो इंसान कैसे अपनी जिंदगी को मुकम्मल बनाए और जिंदगी ही नहीं बल्कि अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश क्या करे। उलूम शरिया की एक बुनियाद है आखिरत का इल्म, उलूम शरिया की एक बुनियाद है आलम बरज़ख का इल्म, उलूम शरिया की एक बुनियाद है मरने के बाद की जिंदगी का इल्म। तो ये मदारिस उसका एहसास पैदा करते हैं, तो ये इंसान को तरबियत देते हैं। तीसरी चीज, ये मदारिस इंसानों को, हमारे बच्चों और बच्चियों को एक खास उम्र तक एक मुकम्मल कोर्स पढ़ाते हैं जिसके जरिए वो अपना आला तालीम मुकम्मल कर सकते हैं, जिसके जरिए वो तालीम याफ्ता बन सकते हैं, जिसके जरिए वो आगे जा सकते हैं। तो गोया कि ये उनके लिए तालीम की बुनियादें फराहम करते हैं, ये उनके लिए आगे जिंदगी की राहें हमवार करते हैं। और चौथी चीज कि ये मुआशरे की रहनुमाई का काम करते हैं, मुआशरे को वो बातें बतलाते हैं जो मुआशरे के काम आ जाए, मुआशरे के लिए वाज़ो नसीहत का काम करते हैं, मुआशरे के लिए इस्तिफ्ता और इफ्ता का काम करते हैं, उन्हें बतलाने का, शरीयत को सिखलाने का, इस्लाम को सिखलाने का काम करते हैं। आप जरा सोचें कि इतनी बड़ी उम्मत
अगर वो इस्लाम से बेबहरा रह जाए, नावाकिफ रह जाए, तो क्या नतीजा होगा। और यही नहीं, हमारे इस मुल्क में जो लोग इस्लाम जानना चाहते हैं, हमारे बिरादरान वतन में जो लोग इस्लाम की तालीमात से वाकिफ होना चाहते हैं, उन्हें अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो कौन उन्हें सिखाएगा। तो ये 4 चीजें हैं जो मदारिस की बहुत बुनियाद है। मदारिस का लिटरेचर, मदारिस के दीगर काम, वो सब अपनी जगह बहुत मुनज़्ज़म है। इसी के साथ साथ मदारिस के असरात क्या हैं, उसे हमें समझने की जरूरत है। आप जरा तसव्वुर करें कि ये मदारिस बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। इन मदारिस से लाखों लाख ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ सतहों पर अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए ये एक मरकज है, उनके घर के लिए, उनके कमाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। आप ऐसी एक इंडस्ट्री को सोच ले कि जिसने 1000 लोगों को रोजगार फराहम किया है। मदारिस ये भी एक ऐसा बड़ा समंदर है जिसमें लाखों लाख लोग अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं और एक निहायत ही मुहज़्ज़ब और अच्छे माहौल में जुड़े हुए। इसलिए मदारिस बड़ी अहमियत के हामिल हैं और उनके असरात इस समाज पर, इस मुल्क पर बड़े अच्छे और गहरे हैं। अलबत्ता मदारिस के पस मंजर में कुछ चीजें हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मदारिस भी इंसानों का मरकज है। यहां फरिश्ते नहीं रहते हैं, यहां भी कुछ ऐसे इंसान आते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ कर जाते हैं कि जो अपनी इंसानी सिफात में कमजोर होते हैं, जिनके अंदर शैतानी सिफात आ जाते हैं, जिनमें कमजोरियां होती हैं, खामियां होती है। घर से उन्होंने मदरसों में पढ़ा है, मदरसों में अपना वक्त गुजारा है, मदरसों से तालीम याफ्ता है, उन्होंने शरिया पढ़ा है, कुरान हदीस पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दुनिया को अपना मकसद बना लिया है। उन्होंने अपने नफ्स की पैरवी शुरू कर दी है, उन्होंने अपने आप को इस दुनिया में दुनिया वाला बना लिया है। और फिर वो तय बात है, उनकी अखलाकियात कमजोर होंगी, उनके मामलात कमजोर होंगे, उनकी बहुत सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी। तो ये हम जरूर समझें कि मदारिस में इल्म हासिल करने वाले लोग वो इंसानी समाज का ही एक हिस्सा होते हैं, इंसानों में से ही होते हैं। यही बच्चे होते हैं जो कॉलेजेस में जाते हैं, उन्हीं में से वो बच्चे होते हैं जो मदरसों में जाते हैं। लेकिन अगर तनासुब अगर हम देखें कि मदरसों से फारिग होने वाले बच्चे और मदरसों से ना फारिग होने वाले बच्चे, उनमें अच्छे और बुरे कितने होते हैं, तो आपको तनासुब का बड़ा फर्क नजर आएगा। मदारिस से फारिग होने वाले बच्चों में तनासुब कम होगा बुराइयों का, मदारिस में ना आने वालों में तनासुब ज्यादा होगा बुराइयों का। इसलिए कि मदारिस में तरबियत का जो निज़ाम है उसका असर उनकी जिंदगी पर, उनके तमाम मामलात पर बहुत अच्छा पड़ता है। अब इस पस मंजर में मदारिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मदारिस जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन एक जिम्मेदारी उनकी है कि अपने को अच्छा बनाने और आज के हालात से अपने आप को ज्यादा मुआफिक बनाने और मुल्क के बेहतरी में अपने आप को आगे लाने के लिए ज्यादा कोशिश करें। आज मदारिस उनका एक माहौल है और उस माहौल से दुनिया नावाकिफ है। उन्हें चाहिए कि अपने माहौल को लोगों के सामने पेश करें, उन्हें चाहिए कि अपने गिर्द पेश रहने वाले समाज और सोसाइटी के अफराद को अपने निजाम से जोड़ें। जो लोग मदरसों में जाते हैं वो जानते हैं मदरसों का निजाम क्या है, वहां पे अखलाकियात क्या है, वहां की खूबियां क्या है। लेकिन बेशुमार लोग मदरसों में नहीं आते और जाते हैं। हम मदरसों में आने जाने का सिलसिला शुरू करें, हम मदरसों तक लोगों को लाने के लिए रास्ते ढूंढें, हम मदरसों से बाहर निकलकर लोगों के यहाँ जाते हैं, लोगों को भी दावत दें कि वो मदरसों में आए, मदरसों को जाने, मदरसों की तशहीर करें, मदरसों के बारे में बतलाएं, मदरसों को ओपन करें, यानी उनको इस तरह रखें कि लोग उससे फायदा उठाएं, उससे वाकिफ हों और मदरसों के निजाम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इस सिलसिले में जो दुनिया के तजर्बात हैं उससे फायदा उठाएं, टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं। बहुत सारी चीजें जो आज के जमाने में तालीम के मैदान में मुअस्सिर है, मुफीद है, उनसे फायदा उठाएं। अगर मदारिस के मुल्तजिमीन ये काम कर ले गए तो इंशाअल्लाह मदारिस का किरदार और अच्छा होगा, मदारिस का किरदार ताकतवर होकर सामने आएगा। मदारिस इस मुल्क के लिए कीमती खजाना थे, इस मुल्क में दीन के किले थे, हैं और रहेंगे। शर्त यह है कि हमारे मदारिस के जिम्मेदारान इसको मजीद उसाद दें, इसमें अच्छाई पैदा करें, इसमें खूबियां लाएं, इसमें जमाने के
करीब जाकर के जमाने की चीजों को शामिल कर ले, इंशाअल्लाह मदारिस उसी तरह काम करते रहेंगे जैसा कि माजी में उन्होंने किया है।